Good morning, student. In yesterday's lecture, we started a new lesson. Be a good host and guest. In last lecture, we explained that how a good host should be. Okay, what you should do before you organize a program, before you start any program. Things should be organized and all. What are the things they had to do? They had to share their ideas with the family members, get the permission of the family members, and they had to see the suitable time, date, place, menu where the function has to be organized. Okay, then list of the people should be made to invite in the parties, and their invitations are given by orally or written, and written is form of formal and informal invitations. These all things we have learned yesterday. Today we will be continuing with the further. See, menu is discussed over there. What are the menus means what are the food items are kept in the party and it has been organized. Now let's see, check out the program. Will you begin with the games or music? When will food be served? Means when we are keeping a party or a program we organize, we should first decide what we are going to keep. Are we going to start the program with the games or music? In some of the parties, we must be knowing that there is lots of music. People dance on the music and all. Okay, they enjoy the music. In the birthday party also, musics are there and children dance. So it is depend on us what we are going to keep. Before that, it is that the good host should always keep the mind about the ideas and the wishes of the guest also. Means first references should be given to the guest, what they like and all, everything. Okay, so that is quite important. You should first give preferences for the guest. यानी उनको क्या पसंद है, क्या चीज़ें खाना पसंद है, किस तरह का प्रोग्राम वो अटेंड करते, ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए हमें अपने प्रोग्राम को भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना है. Then do you want any decorations? It is depend on us whether we want the decoration or we want just to keep a plain parties and all. If you want the decoration, it should be well decorated before the guest appears. Once you have planned the above details, you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each of them. See, if you want to organize a party and all, the task should be distributed. काम को distribute करना चाहिए. एक अकेले इंसान से सब कुछ नहीं हो सकता है, सब चीज़ों पे ध्यान रखना नहीं होता है. So it is better to divide the task to every each of the person should be given a different task so that the program will well function. Okay, यानी खाने का एक लोगों को देने जो खाना अच्छा पका सकता है या ध्यान दे सकता है, ऐसे लोगों को खाने का इंतज़ाम करने के लिए कहा जाना चाहिए. डेकोरेशंस का डेकोरेशन जो अच्छे से कर सकता है उनको डेकोरेशंस का काम सौंपा जाना चाहिए. अगर कोई मेहमान आ रहे तो उनको अंदर इनवाइट करना, उनको हाँ भगत करना, इसके एक जिम्मेदारी हर एक इंसान को देना चाहिए. इस तरह हर एक काम को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जो फंक्शन जो भी हो वो अच्छे से हो सके. Now see here, wow, great, what a surprise on the day of the party. Now see, the grandfather is surprised because उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखा गया था उनका बर्थडे को. You must be get ready before your guest comes. यानी when before your guest appears in the party you should be get ready. ऐसे नहीं मेहमान आए और आप जाके तैयार हो गए. आपके मेहमान आने से पहले आपका तैयारी हो जाना चाहिए. शुड बी वेल गेट रेडी. ओके, देन योर डेकोरेशन फूड प्रिपरेशन शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव. बिफोर द गेस्ट अपीयर्स द डेकोरेशंस एंड द फूड प्रिपरेशन शुड बी मेड. यानी खाना पीना जो भी बनाना है डेकोरेशन से वो सारे आइटम जब मेहमान आते हैं उससे पहले ही तैयार करके रखना होता है. You must greet all your guests when they arrive. If they don't know one another, you must introduce them. When the guest comes, you should greet them. मतलब आपको जाके उनको बुलाना है, उन्हें विश करना है, कुछ उन्हें अच्छे से अंदर लेना है. अगर एक मेहमान एक दूसरे को नहीं जानते, समझो जो दो मेहमान आए हुए हैं वो एक दूसरे को आपस में नहीं जानते, हमें तो जानते लेकिन वो आपस में नहीं जानते, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस देम to each other.
You should see that all your guests are comfortable and happy. जो भी गेस्ट आते हैं you should take care that they should be comfortable, relaxed and happy. You should serve the food politely. Make sure that everyone is served what they want. फूड सर्व पोलाइटली. खाना जो भी आप उनको परोसते हो तो खुशी खुशी परोसिए और अच्छे से परोसिए. उनको जो चाहिए वो आप दीजिए. ओके, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कुछ भी आपको फोर्सफुली खिलाना है. उनको जो जो चीज़ें पसंद है वो आप उसे अच्छी खुशी से खिलाइए. आफ्टर दैट, if you are holding party games, make sure that everyone gets a chance to participate and enjoy. Means if you are organizing a game in your party, then what you should do, ऐसे देखना चाहिए कि सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए. अगर बच्चों का पार्टी है तो बच्चे सब इन्वॉल्व हो. ऐसा नहीं कि एक बच्चों का अलग रखा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो भी बच्चे वहाँ पे आए, दे शुड बी ऑल गेट चांस टू प्ले एंड वॉट एवर द गेम्स आर गोइंग ऑन. Here are some of the common party games. यहाँ पे कुछ कॉमन पार्टीज म्यूजिकल चेयर्स होते हैं. ये है कि हैंड्स अप, एनी वॉट एवर विल बी सेड, यू हैव टू रेज योर हैंड्स और यू हैव टू लीव इट. इन दियर से डम शगस एंड हॉल, 4 words, hot and cold, guessing game, everything. These are some of the games are played in the parties. When it is a time for the guests to leave, you should say goodbye to each of them personally. When they are leaving your house after the party is finished, you should go personally and meet them and bid them goodbye. उन्हें goodbye करने का आपका responsibility है. उनके घर दरवाजे तक जाके आप उन्हें छोड़ के goodbye करते हुए आ जाइए. Most important of all, clean up after a party. उसके बाद है cleaning up the parties. आफ्टर क्लीनिंग पार्टीज के इतने सारे मैसेज होते हैं, सब यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बन जाता है टू क्लीन अप आफ्टर द पार्टी. ओके, इफ़ यू आर अ गेस्ट, ये आर सम ऑफ द टिप्स. नाउ हाउ टू बी ए गुड होस्ट हमने देखा. एक अच्छे होस्ट होने का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हाउ व्हाट दे शुड डू. नाउ लेट्स सी हाउ टू बी अ गुड गेस्ट. Please acknowledge that you have received the invitations and let your host know whether or not you will attend the party. Please acknowledge that you have received the invitation. पहले आप देखिए कि आपको invitations मिला है कि नहीं, उसको बराबर जानकारी ले लीजिए. फिर what is that, अगर आप जा रहे हैं तो आप बता दीजिए कि उनको कि हाँ हम पार्टी में अटेंड कर रहे हैं. अब पता चला उन्होंने पार्टी में अटेंड किया, आप लोग नहीं जा रहे और उनको कोई जानकारी नहीं है, तो उससे उनको भी बुरा लगेगा और जो जो इंतज़ाम वगैरह उन्होंने किया है वो भी वेस्ट चला जाएगा. इफ़ यू आर चूजिंग अ प्रेजेंट फॉर योर होस्ट, थिंक वेल अबाउट व्हाट ही शी विल लाइक. ए थॉटफुल गिफ्ट इज़ अप्रिशिएटेड मोर देन एन एक्सपेंसिव वन. मतलब इफ़ यू आर परचेसिंग ए गिफ्ट, अगर किसी को आप गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि उसको, लड़का हो या लड़की जो भी हो, उसको क्या गिफ्ट पसंद आएगा, किस तरह की चीज़ें उसे अच्छी लगती है. इस बात का ध्यान रखते हुए चीज़ें परचेज़ कीजिए ताकि वो उसको यूज़ में ला सकते. ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव रहेगा तो ही उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, वो चीज़ उनके काम में भी आनी चाहिए. रिमेंबर टू रिमूव द प्राइस टैग्स और द लेबल फ्रॉम द गिफ्ट. इट इज़ नॉट पोलाइट टू लेट योर होस्ट हाउ मच यू हैव स्पेंड ऑन द गिफ्ट. अगर आप गेस्ट हो तो आपका एक जिम्मेदारी बनता है, जो भी आप गिफ्ट परचेज करते हैं, वॉट एवर द गिफ्ट यू आर परचेसिंग, रिमूव द प्राइस टैग. उसमें प्राइस टैग डाला रहता है कि ये इतना अमाउंट है इस गिफ्ट का, तो यू हैव टू रिमूव दैट लेबल या टैग फ्रॉम द गिफ्ट. इट इज़ नॉट पोलाइट. मतलब ये अच्छा नहीं लगता किसी होस्ट को कि हाँ उनको लगे कि हाँ ये इतना खर्चा किया उन्होंने, मेरे लिए इतना सब किया, ऐसा वैसा. तो whenever you are going to present a gift to anybody, please remove the price tag from that gift. कभी भी होस्ट को समझ में नहीं आना चाहिए कि आपने उसके ऊपर कितना स्पेंड किया. रैप द गिफ्ट वेल एंड इफ़ पॉसिबल डेकोरेटिव रैपिंग योरसेल्फ. अपने गिफ्ट को अच्छे से रैप कीजिए, या तो किसी से करवा लीजिए, अगर आप कर सकते तो आप अच्छे से रैप कीजिए. ओके, ऑन द डे ऑफ द पार्टी सी व्हाट इट शुड बी डन. पार्टी के दिन क्या क्या ध्यान देना चाहिए.
बी पंचुअल, रीचिंग टाइम फॉर द पार्टी. ओके, जो टाइम आपको दिया जाता है यू शुड बी प्रेजेंट एट दैट टाइम. इफ़ देयर इज़ एनी वर्क टू बी डन, ऑफर टू हेल्प. अगर कुछ भी काम आपको करना है तो उनको मदद कीजिए. ओके, इफ़ देयर इज़ एनी वर्क, यानी किसी को कुछ काम बचा है, जो होस्ट है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम को, उनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मदद कीजिए. बी फ्रेंडली विद द अदर गेस्ट. यू शुड बी friendly with the other guest. Take part in the program and the games if there are any willingly. यानी you participate in the program if you wish. any games जो भी चल रहा है उसमें आप participate कीजिए, enjoy कीजिए. ऐसा नहीं कि गेम वहाँ पे पार्टी में जाके आप अपने आप को एक अलग से हटा के रखें. तो get involved in the parties that show that you are enjoying the party and you are very thankful to them. अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशंस ऑनेस्टली. जो भी खाना बनता है आप उसकी दिल खोल के प्रशंसा कीजिए और जो भी डेकोरेशंस किया उसकी भी प्रशंसा कीजिए. ओके, इफ़ यू आर लाइकिंग इट डेकोरेशन एंड तो आप हिचकिचाइए मत कि हाँ ये बहुत अच्छा है बोलने में. डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली हैज़ मच यू वांट. खाना वेस्ट मत कीजिए. कहीं पे भी आप फंक्शन में जाते हो, पार्टीज में जाते हो तो वेस्ट मत कीजिए, उतना ही लीजिए हाउ मच यू वांट. When it is time for you to leave, approach your host and say goodbye. Okay, when it is your time for leaving, अब जाने का वक्त जब आता है आपका तो उनको होस्ट को बोलिए कि हम निकल रहे हैं and say goodbye and then move on to your house. Now see what are there. Later on, let your host know either personally or in writing how much you enjoyed the party. उसके बाद आप बताना मत भूलिए कि आपने पार्टी को कितना एंजॉय किया. लिख के बताइए या पर्सनली बताइए. ओके, द सक्सेस ऑफ द पार्टी शुड बी मेजर्ड बाय द गुडविल एंड द फ्रेंडशिप इट क्रिएट्स. बी योर होस्ट और अ गेस्ट, डू ऑल यू कैन टू बूस्ट इट. यानी आप होस्ट बनो या गेस्ट बनो, ऐसे चीज़ करिए कि आपको हमेशा उस बात का ये हो कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है. आपकी भी तारीफ दूसरे लोग भी कर रहे और आपको भी खुशी हो जिसके के मुंह से अपने लिए प्रशंसा सुनते हुए. तो काम कुछ ऐसा कीजिए, होस्ट हो या गेस्ट, आप काम ऐसा कीजिए कि लोग उसकी प्रशंसा करें और आपको भी आपके पर गर्व हो. ओके, दिस इज़ हाउ द होस्ट एंड द गेस्ट शुड बी इन अ फंक्शंस एंड ऑल. ओके, आई होप यू गॉट इट. कोशिश कीजिए आप अगर होस्ट बन रहे हैं या गेस्ट बन रहे हैं तो इन सब क्वालिटीज़ आपके पास हो. ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए और पार्टीज़ को वेल ऑर्गेनाइज कीजिए, वेल सबको इन्वॉल्व कीजिए, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ एंजॉय कीजिए. ओके, दिस इज़ व्हाट द थैंक यू.